الوداع میرے حسین الوداع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. میرے حسین سفر میں 5 محرم الحرام 1442 ہجری چوتھا ورق لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان احمد نصیر حاضر. ناظرین، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ شہادت اول جو کوفیوں نے اپنے گھر بلا کر سیدنا امام مسلم عقیل کے ساتھ کیا ظلم و ستم ڈھائے، ان پر کیا ظلم و بربری ڈھائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوفیوں نے کس طرح ظلم و ستم کیا، اور امام مسلم عقیل کا سر یزید کے پاس دمشق میں بھیج دیا گیا. آج چوتھا ورق الٹتے ہیں. 5 محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہیں، یہ چوتھا ورق الٹتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ امام حسین اپنے تمام جد کو لے کر کرب و بلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اپنے احرام کھول رہے ہیں، اور آگے کیا ہوا آئیے مل کر جانتے ہیں. مکے سے روانگی کے وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، طاقت صرف اللہ ہی کی ہے. اے اللہ اپنے رسول پر رحمت نازل فرما. موت اولاد آدم کے لیے ایسی ہے جیسے لڑکی کے گلے میں گلو بند ہے. میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایسی ہی آرزو رکھتا ہوں جیسی یعقوب کو یوسف کے دیدار کی آرزو تھی. میری قتل گاہ اور مدفن پہلے منتخب ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا میں بیابان کے درندے میرے جوڑو بند کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. میں نوشتہ تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اہل بیت رسول راضی و برضا خدا ہیں. ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور وہی ہمیں صابروں کا اجر عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والے ہرگز ان سے جدا نہیں ہوں گے اور بہشت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو وہ ضرور پورا کرے. جو اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. انشاءاللہ میں کل کربلا کے لیے روانہ ہو جاؤں. ناظرین محترم، یہ کیسی گھڑیاں ہیں کہ امام حج کو ترک کر رہے ہیں اور کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. وہ کربلا بیابان تھا، اجاڑ تھا، جنگل تھا اور وہ ایک صحرا کی مانند تھا، مگر امام نے کربلا کو جا کر کربلا محلہ کر دیا. امام نے ایسا کرم کیا کربلا محلہ پر کہ کربلا وہ بیابان تھا وہ محلہ ہو گیا. امام نے فرمایا کہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا. جس شب کی صبح کو امام مکے سے روانہ ہونا چاہتے تھے، اسی رات محمد حنفی آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ بھائی آپ اہل کوفہ سے واقف ہیں، انہوں نے آپ کے والد اور بھائی سے بے وفائی کی، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی نہ کریں، آپ کے ساتھ بھی وہ بے وفائی نہ کریں، اگر آپ مکے میں رہیں تو بہتر ہے. امام حسین نے فرمایا بھائی مجھے خوف ہے کہ کہیں یزید بن معاویہ مجھے اچانک حرم میں قتل نہ کر دے، یزید بن معاویہ، اور میری وجہ سے خانہ کعبہ کی، خانہ خدا کی بے حرمتی ہو جائے. حسین کی وجہ سے خانہ خدا کی، جن کی وجہ سے حج اتارا گیا، جن کی وجہ سے مکہ قائم کیا گیا، جن کی وجہ سے مکہ بنایا گیا، جن کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، وہی کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا رہے ہیں، کعبہ کی حرمت کو پامال ہونے سے. انہوں نے دین بچایا، انہوں نے دین اسلام کرنے کا بجایا، وہی آخری سجدے میں بھی اپنے نبی کے دین کو بچا گئے. اور آگے کیا ہونا ہے؟ محمد حنفیہ نے کہا کہ اگر مکہ مکرمہ میں ایسا اندیشہ ہے تو کہیں بھی چلے جائیے یا ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے کہ جہاں آپ پر کوئی غالب نہ آ سکے. امام حسین نے فرمایا آپ کے اس مشورے پر میں غور ضرور کروں گا.
सहर के वक्त इमाम हुसैन ने कूच का इरादा किया। जब मोहम्मद हनफिया को खबर हुई तो वो फिर आए और नुहार पकड़कर कहने लगे कि भाई आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी बात पर गौर करेंगे, क्या हुआ जो इतनी जल्दी आप मक्के से जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया कि आपके जाने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फरमाया कि हुसैन निकलो, हुसैन यहाँ से निकलो, बेशक अल्लाह तुम्हें मकतूल देखना चाहता है, अल्लाह चाहता है कि हुसैन कत्ल हो जाए। ये रसूल ख्वाब में फरमा रहे हैं अपने नवासे कि बेशक खुदा चाहता है कि मेरा नवासा कत्ल हो जाए, यानी खुदा चाहता है कि मेरे महबूब का नवासा कत्ल हो जाए। मोहम्मद हनफिया ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ये 9 जिलहज है, ये 8 जिलहज है। 8 जिलहज को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाले मौत से क्या घबराएंगे? आप मौत से घबराने की बातें करते हैं। वो जानते थे मौत उनके नजदीक ऐसे ही थी जैसे एक नौब्याहती लड़की के गले में गुरबंद बंधा होता है। मौत इमाम के नजदीक ऐसी थी। और दरियाफ्त किया कि फिर अपने साथ खवातीन को क्यों लिए जा रहे हैं? मोहम्मद हनफिया ने दरियाफ्त किया कि फिर अपने साथ खवातीन को क्यों लिए जा रहे हैं? इमाम ने जवाब दिया कि खुदा की मशीयत ये है कि इन्हें असीर देखे, इसलिए साथ लिए जाता हूँ। इसके बाद मोहम्मद हनफिया ने और कोई सवाल नहीं किया बल्कि अपने भाई को अलविदा किया और इमाम हुसैन रवाना हो गए। 8 जिलहज 60 हिजरी 680 ईस्वी जबकि दुनिया भर से आए हुए मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए तैयारियां कर रहे थे, इस वक्त इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली खाना काबा से दूर जाने की तैयारियां फरमा रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से 27 दिन पहले नाज़िर मोहतरम यानी 12 ज़िलक़द 60 हिजरी को इस वक्त खत लिखा था जब कूफा के हालात इमाम हुसैन और इनके हक में थे। इस खत की बिना पर सैयदना हुसैन ने कूफा जाने का फैसला कर लिया था, मगर जाने की तारीख मुकर्रर नहीं कर रखी थी। फिर जब हज में 2 या 3 दिन बाकी रह गए तो आपने अचानक हज को उम्रे में तब्दील कर दिया और मक्का मुअज़्ज़मा से हज से पहले रवाना हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फरज़दिक का सामना हुआ तो फरज़दिक ने आपसे सवाल किया कि ए इमाम, आपने मक्का मुकर्रमा को हज से बस 2 दिन पहले क्यों छोड़ा? इमाम ने जवाब दिया कि अगर मैं मक्का न छोड़ता तो वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि हाजियों के भेष में शाही सिपाही मक्का में पहुंच चुके थे। नाज़िर मोहतरम, शाही सिपाही मक्का में पहुंच चुके थे। मक्का मुकर्रमा से करबला तक इमाम ने जिन मकामात पर क़याम फरमाया उनके बारे में मुर्रखीन में बड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। मक्के से रवानगी के बाद इमाम ने जहां सबसे पहले पड़ाव फरमाया उसका नाम सफ़ा बताया जाता है। जहां फरज़दिक शायर से मुलाकात हुई तो फरज़दिक ने कूफा के लोगों का हाल इस अंदाज में बयान किया कि कूफा के लोगों के दिल आपकी तरफ माइल हैं, मगर तलवारें बनु उमय्या के साथ होंगी। इमाम ने फरमाया कि तुम सच कहते हो। इसके बाद तैयब में अब्दुल्ला बिन जाफर से मुलाकात हुई तो आपके साथ ना जा सके, जो आपके साथ ना जा सके, मगर उन्होंने अपने दोनों बेटे आन और मोहम्मद इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर दिए। फिर इमाम अली मकाम इराक की तरफ गामज़न हुए। हाजिर नाम की मंजिल पर इमाम अली मकाम ने कबस बिन माहिर जो अहले कूफा की तरफ से आए थे उनके हाथ कूफा को एक खत भेजा। कैस इस खत को लेकर कूफा रवाना हुए कि जब नमाज अदा हुई पहुंचे तो हुसैन बिन तमीम की फौज ने उन्हें गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि कैस, अगर तू जान बचाना चाहता है तो मिंबर पर चढ़कर हुसैन इब्ने अली के खिलाफ तकरीर कर। अगर तू जान बचाना चाहता है तो मिंबर पर चढ़कर हुसैन इब्ने अली के खिलाफ तकरीर कर और उनकी अच्छी तरह मजम्मत कर। कैस ये सुनकर मिंबर पर चले गए। लोग सुनने के लिए हमाकन गोश हुए और कैस ने कहा कि ऐ लोगों, इस वक्त खल्के खुदा में बेहतरीन शख्स हुसैन बिन अली है। खल्के खुदा में बेहतरीन शख्स हुसैन बिन अली है जो रसूल की बेटी फातिमा के फर्जंद हैं। मैं इन्हीं का भेजा हुआ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा फर्ज है कि उनकी नुसरत के लिए मेरा साथ दो, कदम आगे बढ़ाओ और उनकी आवाज पर लब्बैक कहो। इब्ने ज़ियाद ने गज़ब में आकर हुक्म दिया कि इसे ऊपर से जमीन पर गिरा दो।
हुक्म की तमील हुई और कैस के आजाद चारों तरफ बिखर गए। अब यहाँ से अगली मंजिल चलते हैं। इसी तरफ मंजिल के करीब एक खेमा था, वहाँ ज़ुहैर बिनुल कैन का खेमा नस्ब किया गया था जो मक्का से कूफा वापस आ रहे थे। ज़ुहैर को खानदान रिसालत से कोई अकीदत नहीं थी। इमाम हुसैन को ज़ुहैर के पड़ाव का हाल मालूम हुआ तो इमाम ने ज़ुहैर को पैगाम भेजा कि वो इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ज़ुहैर को खानदान रिसालत से कोई अकीदत न थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। एकदम ज़ुहैर की नेक वक्त बीवी ने कहा कि क्या गज़ब कर रहे हो खुदा के बंदे, क्या गज़ब कर रहे हैं। नवाज़ रसूल आप मिलना चाहते हैं और आप इनकार कर रहे हैं, क्यों? कुफरान नेमत पर तुले हुए हैं। बीवी ने समझाने पर ज़ुहैर रजामंद हुए और खुद इमाम के पास मुलाकात के लिए गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने गुफ्तगू ना सिर्फ ये कि उनके कल्ब की सफाई की, बल्कि जब आपको कूफा जाने का मकसद उनके सामने बयान करने लगे तो ज़ुहैर आपकी सदाकत से इस कदर कायल हुए कि वापस आकर अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत से आज़ाद कर दिया और हुसैन के साथ जाने का सफर था। इसी मंजिल से रवाना हुए काफिला हुसैनी की परेशानियों का आगाज शुरू हो गया। असदी कबीले के दो अशखास जो इस मंजिल पर आकर काफिला हुसैन में शामिल हो गए, उन्होंने कूफा से आने वाले एक शख्स का पीछा किया जो इस काफिले को देखकर रास्ता काट कर दूसरी सिमत चल पड़ा था। जनाबे हुसैन तो इसकी फिक्र न की, मगर दोनों असदियों ने घोड़े आगे बढ़ाकर उसे जा पकड़ा। इन्हें मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक भी असदी कबीले से है तो उन्होंने उससे पूछा कि कुछ कूफा वालों का हाल बताओ। उसने जवाब में बताया कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया है और इनकी लाशों को पैरवी से बांधकर यानी पैरों से बांधकर बाजारों में घसीटा जा रहा है। जब सालदा पर इमाम अली मकाम कायम फरमाया तो दोनों असदियों से मजीद बात छुपाई न जा सकी और उनमें से एक ने कहा कि इमाम अली मकाम हमारी जाने आप पर मिसाल, अगर अहम बात अर्ज करनी है हुक्म हो तो सबके सामने कह दूं, वरना तन्हाई में अर्ज कर दूं। इमाम ने एक नजर हाज़रीन में उड़ाई और फरमाया कि यहाँ पर कोई भी गैर नहीं है, तुम बेतकल्लुफ होकर जो कहना चाहते हो कह सकते हो। कहने लगे कि ए इमाम अली मकाम, कल जो शख्स कूफे से आया हुआ था हमें देख कर रास्ता काट गया था। इत्तिफाक से उसका ताज्जुब उसका यानी पीछा करते हुए हमने उसे जा लिया। वो भी हमारे कबीले से ताल्लुक रखता था। मैंने उससे कूफा का हाल दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि जनाब मुस्लिम अकील और रानी बिन उर्वा की लाशें कूफा के बाजारों में घसीटी जा रही हैं। इस इत्तला ने हाज़रीन पर गहरा सकूत तारी कर दिया। सरदार काफिला सैयदना इमाम हुसैन को इन बातों का पहले ही से अंदाजा था, लेकिन इस खबर के बाद उन्हें अपने काफिले वालों को कुछ हौसला दिया और चुनाचे आपने एक नजर औलाद अकील पर डाली और फरमाया तुम्हारी क्या राय है? मुस्लिम तो शहीद हो गए। तमाम अकीली नौजवान खड़े हुए और कहने लगे कि खुदा की कसम हम तो वापस न होंगे। यहाँ से आगे बतीन अतीक की मंजिल पर कबीला कर्मा के एक शख्स अमर बिन लोफान मिला। उसने बताया कि इब्ने ज़ियाद के हुक्म से कादसिया में नाकाबंदी कर दी गई है। इमाम ने हुसैन ने दुआ दी कि और आगे रवाना हो गए। काफिला हुसैनी ने बंते अतीक से चलकर सिरात पर कयाम किया और यहाँ रात बसर की और फिर इमाम ने हुक्म दिया कि मशकों और छागलों को पानी से भर लिया जाना। ये वो मंजिल थी कि कूफियों की वफादारी का पर्दा चाक होना था। इस मंजिल से आगे बढ़े तो मुहर्रम 61 हिजरी का चांद नमूदार हो चुका था। मुहर्रम 61 हिजरी का चांद नमूदार हो चुका था। यतीमी का चांद, वतन से बेवतन होने का चांद नमूदार हो चुका। पहली तारीख को दोपहर के वक्त लोग को दूर कुछ साए नजर आए। कुछ का ख्याल था कि ये दरख्त हैं, मगर बाद लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि वो घोड़ों की गर्दनें हैं। इमाम ने इस ख्याल की तस्दीक की कि ये घोड़ों की गर्दनें ही हैं। जो हिस्न के इस मकाम पर जब इमाम ने दुश्मनों को आते देखा तो इमाम ने लोगों से पूछा कि कोई ऐसी जगह है जहां जाकर हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। लोगों ने अर्ज किया कि जाएं जानिबे जो हिस्न पहाड़ है और अगर हम वहां पहुंच जाएं तो जंग कर सकते हैं और घेरे में आने का खतरा नहीं रहेगा। इमाम ने काफिले का रुख इधर कर दिया, दुश्मन की फौज इधर घूम गई। फिर मालूम हुआ कि दुश्मन की फौज की तादाद 1000 है और फौज का सिपहसालार हुर है। तपती धूप में हुर के घोड़े प्यास से बेताब हो रहे थे। इमाम ने हुक्म दिया राकिब और मरकब दोनों को पानी पिलाया जाए।
दुश्मनों ने सैर होकर पानी पिया। यानी इमाम अली मकाम ऐसा मकाम है, ऐसा मर्तबा है कि दुश्मन के घोड़ों को पानी पिलाया जा रहा है, अपने छागलों को पानी से खाली किया जा रहा है कि दुश्मनों के घोड़े प्यासे हैं, दुश्मन प्यासे हैं। दोनों को पानी पिलाया, दुश्मनों ने सैर होकर पानी पिया। इमाम के इस हुस्न सलूक का ये असर हुआ कि हुर की जैसे जबान बंद हो गई। जोहर और असर की नमाज हुर और इसकी फौज ने इमाम की इमामत में पढ़ी। नमाज के बाद इमाम ने फरमाया कि अगर तकवा इख्तियार करोगे और हकदार का हक पहचानोगे तो खुदा की रिजा मंदी हासिल करोगे। हम अहले बैत उन लोगों से ज्यादा मुस्तहिक हैं जो आज मनसब गलत दावेदार हैं। अगर तुम इस राय का इजहार करते हो जो तुम्हारे खुतूत से जाहिर होती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। हुर ने कहा कि हम लोग उनमें से नहीं कि जिन्होंने आपको खतूत लिखकर यहाँ बुलाया है, हमको तो सिर्फ आपकी हिफाजत पर मामूर किया गया है, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को इब्न ज़ियाद के पास ले जाएं। फिर कुछ आगे की मंजिल पर फौज हुसैनी और हुर की फौज ने एक तीर का फासला रखकर अपने अलग अलग खेमे लगाए। काफिला नैनवा की सरजमीन पर पहुंच गया और हुर भी साथ साथ है। यहाँ कूफा की सिमत से एक सवार आता दिखाई दिया और इस गली आमद का इंतजार ही कर रहा था। वो आया, उसने हुर को सलाम किया मगर जनाब इमाम हुसैन को सलाम नहीं किया। ये इब्न ज़ियाद का कासिद था जो हुर के नाम उसकी एक खत लिखकर आया जिसमें तहरीर था कि तुम पर लाजिम है कि जहां पर तुम ये खत पढ़ो वहां पर ही हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो। हुर जनाब इमाम हुसैन के पास आया और कहा कि मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूं। ज़ुहैर को इस पर गुस्सा आया मगर इमाम ने ज़ुहैर को रोक कर कहा कि जंग की इब्तिदा में नहीं करूंगा। फिर इमाम ने हुर से फरमाया कि कुछ तो चलने दो, मगर हुर ने कहा कि यहीं उतर जाएगी। नहर फुरात यहाँ से दूर नहीं। ये मुहर्रम हराम की दूसरी तारीख जुमेरात का दिन था और 61 हिजरी थी कि जब इमाम हुसैन अली मकाम करबला पहुंचे। यहाँ एक जमात मुकीम थी। आपने उनसे शहर का नाम मालूम किया, जवाब मिला इसे फुरात कहते हैं। आपने फरमाया इसका दूसरा नाम भी है, जवाब मिला कि इसे करबो बला कहते हैं। ये सुनकर इमाम अली मकाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम ये जमीन करबो बला है। फिर फरमाया कि इस जमीन की एक मुट्ठी मुझे खाक दो। और जब इमाम अली मकाम को खाक दी गई, इमाम ने खाक सूंघी और कुछ खाक अपनी जेब से निकाली और फरमाया कि खाक मेरे नाना के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और फरमाया था कि ये खाक हुसैन की कब्र की खाक है। यही खाक हुसैन की कब्र की खाक है। उसके बाद फेंक दी और फरमाया दोनों की बू एक जैसी है, उतर जाओ, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा खून बहाया जाएगा, यही हमारी कब्र बनेगी, यही हमारे सर काटे जाएंगे, यही हमारी कब्रें बनेंगी, यही बीवियों के सरों से चादरें खींची जाएंगी, यही खैमों को आग लगाई जाएगी, यही शामे गरीबा होगी, यही सकीना के चेहरे पर तमाचे मारे जाएंगे, यही अली असगर का खून बहाया जाएगा, यही अली अकबर पर बरसी चलाई जाएगी, यही अब्बास के बाजू को काटा जाएगा, यही शहजादे कासिम के जिस्म को पमाल किया जाएगा और यही तमाम भी के बाजू काट दिए जाएंगे। यही सरजमीन मक्तल है, यही करबला है जिसमें कर्ब भी है और बला भी है। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी थे और तमाम भी काफिले हुसैनी इमाम अली मकाम की ये तकरीर सुन रहे थे और तमाम भी असहाबे हुसैन की आंखों से टिप टिप मोती बह रहे थे। यानी इमाम अली मकाम के काफिले की आंखों में आंसू थे और सबके सब अपने नाना अपने जद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रो रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, ये है लूटा काफिला हुसैन का। हुसैन करबला में है, हुसैन सफर में है, सफर की मंजिल आ चुकी है। इसके आगे क्या हुआ इंशाल्लाह जानेंगे कल अपने मेजबान से।